जब हम बहुत ज़्यादा मैं हो जाते हैं और तुम हो जाते हैं और हम होना बंद हो जाते हैं, तब क्रैक्स शुरू होते हैं रिलेशनशिप पे। दूसरे को यस भी कर दिया करो, हर चीज़ अपने लिए यस है और दूसरे के लिए नो है, तो फिर वो इंसान आपके साथ खुश कैसे रह सकता है? मेरे ख्याल में हर रिश्ते में ये आता है, हर रिश्ते में दोस्ती बहुत पैरामाउंट है। Ma'am, thank you for coming to Impact Stories. Thank you. Thank you, Ankit, for calling me here. ये तो मतलब होना ही था, ये तो करना ही था मैंने जी। सो मुझे लगता है पहले आपकी जर्नी के बारे में बात ना करें तो फिर वो मज़ा आएगा नहीं, बिकॉज यू हैव बिलोंग फ्रॉम वेरी स्कॉलर फैमिली, वेरी आर्टिस्टिक फैमिली, और फादर का इन्फ्लुएंस बिकॉज ही इज़ ऑल्सो डू लाइक क्रिएटिव फील्ड ऑल्सो। सो स्क्रैच से जो कहानी है ना यहाँ तक क्यों मुझे जाननी है। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। It's a wonderful meeting and looking forward to some very interesting conversations. Thank you. So talking about my family background, my father was a great author. He was one of the finest short story writers of Urdu. And by profession, he was a journalist. So he used to write for the papers, and he also worked for Sovietland. So he was the editor there. And so my father basically was a unique human being. And anybody who knew him and everybody जो उनसे वाकिफ थे वो कहते थे कि इतना उम्दा इंसान नहीं देखा है. So he was a very friendly father and very democratic father. We didn't have this whole thing of a hierarchy in the family and an autocratic father and nothing like that. बहुत ही progressive or emancipated family थी. So we got a lot of wonderful guidance and wisdom from him. And obviously, he was a writer and he was extremely artistic, very well versed with all the art forms and cinema and everything. So, इसलिए because हमारे जो मम्मी नाना थे, which was the only nana we really knew, Khwaja Ahmed Abbas. He was obviously a great storyteller. He was a writer. He was a filmmaker. And he used to write for Raj Kapoor for all his huge blockbusters. So we were in Bombay for a few years and हम लोगों की काफ़ी अच्छा मतलब जैसे कहते हैं लोगों से मिलना जुलना, exposure, all the interesting areas of filmmaking. So I was well versed with it at a very young age. And मैं काफ़ी रही हूँ उस माहौल में. तो बस कहने का मकसद ये है कि we were very fortunate, I think, as children who got everything at the given, opportunity. जिस वक्त बच्चे स्पॉन्जेस की तरह हर चीज़, ऑब्जॉर्व करते हैं, उस वक्त हम लोग जो है बड़े मतलब कैजुअली इस माहौल में रहते थे. हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि इतना बड़ा कोई शायर या इतना बड़ा कोई लेखक या फिल्म मेकर्स या पीपल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ फिल्म मेकिंग, एंड उसके बाद क्लासिकल आर्ट्स की तरफ, सिनेमा. आई जस्ट फील दैट इस तरह का जो माहौल था ज़्यादातर हमारे देश में सदियों से लोगों को लगता है कि कला जो है वो एक फिकल चीज़ है, जबकि वो बहुत गहरी है. बिल्कुल. और उसका कोई अंत ही नहीं है. उसमें आप डूब जाएं तो फिर वो समंदर की तरह आप तैरते रहिए ज़िंदगी भर, ऐसा लगता है 7 जन्म भी काफ़ी नहीं है. और इतना भरपूर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूलों में एट अ यंग एज the children should be exposed to it. बंगाल में है. बंगाल में you have schools teaching classical music and dance. Now the thing with classical music and dance is that it's usually thought of as something very somber and heavy. And इसकी वजह से मुझे लगता है लोगों को उसकी तरफ जो है on a large level, generally speaking, कोई इंटरेस्ट नहीं है या खिंचाव नहीं है उसकी तरफ. Usually you have दूरदर्शन programs and whatever little they see here and there, it's all done in a very जैसे कहते हैं grayish manner. So it needs more color to it. It needs to be presented in a certain way. And I think, if you give it that
Unfortunately, today glamour and glitz is everything. So if you give it that kind of a, glamour in a smaller quotient, it would, I think, do very well for itself because the art itself is very mesmerizing and dazzling. बहुत ज़्यादा कोई भी कला जो है वो इतनी नैरो और थोड़ी सी वाकफियत बढ़ती है इंसान की, तो उसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत दरवाज़ा खुलता है, So I personally feel we were very fortunate. We were brought up like that. Everybody isn't given that exposure. अगर दिया जाए तो मुझे लगता है बहुत लोग एक बहुत छोटी सी उम्र में उसकी तरफ खिंचते चले जाएंगे. शायद मैं बात भी कर रहा था, मैंने आपसे बताया था एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था. When I saw somebody performing ना, so मुझे बड़ा ही mesmerizing लगा कि यार वाओ यार ये क्या है, कौन सा आर्ट फॉर्म है, तो बताया. But there was a man sitting next to me, but he was like very okay. तो उसने बोला because आप जो आर्ट देख रहे हो ना वो फिल्टर्ड है. अब देखिए वैसे तो मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना ज़बाना, बिल्कुल, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है ये बहुत ही अनोइंग सी एक चीज़ हो जाती है कि लोग जो हैं सिर्फ अपने वक्त को बहुत अच्छा समझते हैं और उसकी वजह ये होती है कि दे नॉट कनेक्टेड विद व्हाट्स गोइंग ऑन. मेरे in my case that is not so, but at the same time I would also like to say is that television has done its bit, which has been pretty destructive, to put it very very straightforwardly. कि ये आपकी जो reality show है they're very entertaining, people get a lot of exposure, बहुत सारा talent discover होता है, but उसके बाद उनकी तालीम नहीं की जाती है. I don't understand when somebody is when you find unique talent, why doesn't the state or the government or the television or any kind of funds given for this particular reason from wherever, and obviously there are a lot of patronage coming along also, उसकी तालीम क्यों नहीं कराई जाती है फिर at the best, ताकि वो डेवलप हो जाए. आप देखिए पहले ज़माने की जितने भी हमारे प्लेबैक सिंगर्स, लता जी हो गई, मोहम्मद रफ़ी साहब हो गए, आशा भोसले जी हो गई, ये जितने भी और भी सारे जितने भी सिंगर्स थे जो फॉर फ्रंट पे थे और खूब धड़ल्ले से गा रहे थे फिल्मों के लिए, they were all of them, every one of them, उनकी तालीम और उनका फाउंडेशन बहुत तगड़ा था. अब जैसे मुझे ये बात पता है कि आप you have closely worked with पंडित बिरजू महाराज जी, है ना? Yeah, I've not worked with him. I've guidance. So एक स्टोरी है, मैं मतलब वो बोलूँगा आपसे, मैं चाहता हूँ उसे आप एक्सप्लेन करो. तो मेरे एक फ्रेंड है, मैंने बोला भी था, हम ऑफ द कैमरा ही बात कर रहे थे, एक फ्रेंड है, तो ही सॉ ऑल द जो ओल्ड एज पे होते हैं वो घर बैठे होते हैं ना, एंड ही वाज परफॉर्मिंग इन हिज कॉलेज और ही इज क्वाइट यंग. तो जब उन्हें मिलने गया और उनसे बात करने लगा तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि आप इतनी एज पे परफॉर्म कर रहे हैं, कि मुझे भी आपकी तरह कुछ करना है और आप ये क्यों कर रहे हैं. तो उन्होंने बोला कि हमारा देश एक दिन सोने की चिड़िया था, बट आज वो ना सोने की चिड़िया है, तो जो बचा है मैं उसे बचा रहा हूँ. वो धरोहर बचा रहा हूँ. तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ये है. तो मैं कह रहा हूँ आज वो कॉन्ट्रीब्यूशन के जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं लोग. देखिए ऐसा है कि जब हम बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज जी की, तो ही वॉज अ रेयर आर्टिस्ट. सदियों में ऐसा एक कलाकार होता है. तो वो इतने मल्टी फेसेटेड थे कि उनके अंदर से क्रिएटिविटी जो है ना वो उभरती थी. ही वॉज लाइक अ फाउंटेन ऑफ क्रिएटिविटी, कॉन्स्टेंटली अंदर से निकलती थी. एंड ही हैड अ फ्लेयर फॉर एनीथिंग. अगर कोई इंस्ट्रूमेंट उठा लिया, शायरी करी, पेंटिंग, और गाते तो थे ही वो. परकशन नाल पे उनका तो हाथ था, तो कोई भी किसी का भी नहीं था. और तबला वबला तो खैर वो बहुत खूबसूरत बजाते. तो उनके लिए क्या था ना, एनीथिंग दैट यूज्ड टू अपील टू हिम, वो उसको बहुत जल्दी कर देते. आई विल गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ही वेंट टू रशिया, तो वहाँ पे उनका टूर वूर जब खत्म हुआ तो ही वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय बैले. कुछ उनके अंदर एक ख्याल आया होगा, हर चीज़ ख्याल से पैदा होती है. तो उन्होंने शायद कथक को एक अलग शेप देने का उनके ख्याल आया होगा. तो जब उन्होंने वहाँ रह के रुडोल्फ डुरीफ के साथ काम किया, तो रुडोल्फ डुरीफ हमारी क्लास में आए. लकीली जब हमारे बैचेस थे तो बहुत बड़ी शख्सियतें आती थी, जैसे
सत्यजीत रे साहब वगैरह, बहुत सारी. तो उसमें रुडोल्फ डोरीफ जो हैं वो हमारी क्लास में आए, एंड फॉर्चुनेटली आई वाज आल्सो डांसिंग इन दैट बैच देन. तो उन्होंने बताया कि वी डोंट अंडरस्टैंड हिम, वी डोंट अंडरस्टैंड दिस ग्रेट आर्टिस्ट हु was able to do so much with ballet in just 6 months. अच्छा, उसके बाद महाराज जी ने सीधे लाइन्स की कथक को बहुत डेवलप किया, और उसमें गोलाई और उसमें आर्चेस और उसमें टूम्स और उसमें वो सारी चीज़ें वो लेके आए. उसके बाद उन्होंने बैलेस किए, बहुत फेमस बैलेस, बहुत पॉपुलर बैलेस उन्होंने किए. हफ्तों चलते थे और ऑडियंसेस पैक्ड होती थी, बहुत डिमांड था उनके बैलेंस का. और उन्होंने एक बिल्कुल अलग साइंस पैदा कर दिया उस आर्ट फॉर्म में. बैलेज में हम लोगों ने स्लिप करके नाचना सीखा, बहुत अलग इंटरप्रिटेशंस थे. फिर उसके बाद उन्होंने उसको, फिर वो जो एक बार उनकी शुरुआत हुई ना, अच्छा, he used to do duets with Odissi, he used to do, you know, वो सब हर तरह की चीज़ें करते थे. He was extremely exploratory. और वो उनके अंदर था, उनको शौक था. जैसे वो कहते थे मैं माइकल जैक्सन के साथ I want to perform one day. So he had this fascination for anything that is happening beautifully around the globe, you know. और वो खुद ट्रैवल भी बहुत करते थे. और जब वो ट्रैवल करके performances, workshops, lecture demonstrations and all that he used to do, तो naturally वहाँ के जो लोग को invite करते थे हर जगह. So he was very, very well exposed to various art forms and especially dance. तो and music, which was his forte. तो इसलिए मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ें हमें मिल गई, एक ही छत के नीचे हमें मिल गई. और महाराज जी सिखाते इस तरह से नहीं थे कि जो मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही उसी तरह से करो. He made us independent performers. और उन्होंने देखा कि इस पर्टिकुलर डांसर में ये बहुत खूबसूरत है, तो he would enhance that. And if there was a technical area in this student, he would enhance that. And then he would make everybody dance together, perform together, so that they could borrow each other's fortes, you know. So it was such a beautiful mix. हमें पता भी नहीं चलता था उस जमाने में, हमें नहीं मालूम था महाराज जी क्या कर रहे हैं. Because we were young and we were new and we were very excited to learn. But obviously, you know, experience and exposure. वक्त लगता है. तो ये चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं कि हम लोगों को इतना कुछ, और फिर कथक के अंदर में बहुत कुछ होता भी था. And he went and he saw Qazi Saab's plays and he brought back amazing stage production and you know, blocking and presentations, interpretations, and he brought it all into his ballets and his, you know, his creative pieces. और तो उसके लिए वो बहुत मशहूर भी थे. और उसकी वजह से उनकी जो शागिर्दें थी वो इतनी मकबूल हो गई, इतनी फेमस हो गई, क्योंकि हर जगह उनको देखा गया और उन्हें एक्सपोजर मिला और वो बहुत इंटरेस्टिंग काम करने लगे. तो ऑल ऑफ देम हैड वेरी वाइड वे. तो जब उनके जनरेशन का वक्त आया, जब वो वहाँ पे पहुंचे, तो दे ऑल स्टार्टेड डूइंग न्यू वर्क and bringing something new to the art. To the art form. So he started a whole trend actually, and he created it. So we were very fortunate. I mean, I personally feel that शायद एक जगह पे रह के इतने साल हम इतनी चीज़ें ना सीखते. जैसे वो हमें बताते थे, कहते थे, उन्होंने बताया कि आपके इर्द गिर्द, भाई वो महबूब को कृष्णा कहते हैं हमारे उसमें, कि कृष्ण है, उसने छू दिया, वो आ गया. हर चीज में आप अकेले उसका एहसास है आपको, एंड यू आर डूइंग योर अभिनय, योर रिएक्टिंग. तो कहते थे कि जब पहली बार हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्री के लिए और इस तरह की चीजें शुरू हुई, तो महाराज जी ने कहा कैमरा को कृष्ण समझो. इज देयर, यू आर अवेयर, येट यू आर प्रिटेंडिंग, येट ऑल दैट उतार चढ़ाव, गिव एंड टेक जो आपका चल रहा है अभिनय का, वो कैमरा को आप कृष्ण बना. So it was very interesting, you know, the way he used to, उनका perception ही कुछ अलग था, vision ही अलग था. अब एक बड़ा interesting मतलब question है जो मुझे लगता है आपसे अच्छा कोई जवाब देगा नहीं. See, you married quite young, है ना, and you have seen both the side of religion also, right? So what is your take on religion? जैसे आजकल लोगों ने तो केवल अपना वो बना लिया है, बस कुछ भी अपना interpretation है. What is your take on that? See, I feel religion should have been full of sanctity. And like everything democratic, people should be given choices
as to what they would like to follow. हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे को इतना mentally condition कर देते हैं कि before he starts speaking, he already knows which God he has to follow. Beautiful. And he is not exposed to others. So कई बार क्या होता है कि some children who are seeking the truth, and it's a quest inside them, you know, to find their own truth. Sometimes they follow something else. But in large numbers, you know, children don't have a choice. Like you don't give them a choice for their careers. Doctor है तो doctor ही बनना है. You know, engineer वो है तो engineer ही बनना है. इसी तरह से खुदा को किस नाम से आप पुकारेंगे वो भी उनको चॉइस नहीं दिया जाता. उनके खून में हो जाता है ना वो पूरा, जैसे कहते हैं अब्जॉर्ब हो जाता है. उनके पास आंखें खोलते हैं तो बस उनको वही दिखता है, which I feel is not right. Because every human being, when they are developing, when they are children, should be able to be exposed to everything and then say, okay, this is being followed in my home, I would like to come back to this. Or being given a choice to be able to. भगवान परमात्मा गॉड खुदा एक है, सिर्फ तरीके अलग हैं. अगर हम कथक कर रहे हैं तो कोई और भरतनाट्यम कर रहा है, तो कोई ओडिसी कर रहा है, तो कोई बॉलीवुड कर रहा है, कोई कंटेम्प्रेरी कर रहा है, कोई कुचिपुड़ी कर रहा है, कोई वेस्टर्न कर रहा है. दे यू नो, बट डांस इज डांस. इट इज अ ब्यूटिफुल ह्यूज अनएंडिंग वर्क. You know, like how classical arts is there, it is divinity. It is divine. जैसे मेरे लिए मेरा meditation मेरी तत्कार है कि मैं अगर 1.5 घंटा नाचती हूँ और तत्कार ही कर रही हूँ फुटवर्क, तो कुछ वक्त के बाद after various phases of wanting to stop because of the pain and the legs and all, you stop feeling your legs. When you stop feeling your legs, आपको सिर्फ झनकार उसकी ध्वनि सुनाई देती है, and the only thing that is happening is this part. And so you are aware of just this. And so you are meditating. You are elevated. Beautiful. और सिर्फ उसके उसमें आप एकदम मेडिटेशन में चले जाते हो. So, you know, each one has their own way. अब कोई अगर मुझसे कहे नहीं, आप अगर बैठ के एक ही जगह स्थिर होके मेडिटेट करेंगे तो उसको मेडिटेशन बुलाया जाता है. मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे तत्कार में जो मेरा मेडिटेशन हुआ है, मैंने अलग अलग तरह के मेडिटेशंस किए हैं, तो वो तो इतना डिवाइन है कि उसके मेरे लिए एज अ डांसर, बिकॉज आई एम अ डांसर, आई थिंक डांस, आई फील डांस, आई लुक एट द वर्ल्ड थ्रू अ डांसिंग ग्लांस. मेरे लिए बादल नाचते हैं, मेरे लिए चिड़िया ब्लॉकिंग और कोरियोग्राफी करती है, तो मेरा नज़रिया अलग है. तो मैं जिस ध्वनि से मुझे सब्लिमिटी मिलती है, जहाँ पे मैं चली जाती हूँ किसी उसमें, है ना, मेरा मोक्ष तो नृत्य से ही है. नृत्य से ही है. तो यही मेरा कहने का मतलब है कि एक सिंगर का वोकल ही होगा या साउंड से होगा. सो एवरीबडी हु इज बोर्न शुड बी एक्सपोज टू आर्ट टू सम एक्सटेंट, बिकॉज उसमें उनके अंदर जो पीस एंड जो ब्यूटी पैदा होगी, जो खुशी दी जाएगी, जो डीप हैप्पीनेस, तो डिप्रेशन भी नहीं होगा मुझे तो लगता है लोगों को लार्जली इफ दे आर डांसिंग. एंड सो सिंगिंग ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. सो वही मैं कह रही हूँ ना कि वो अंदर जो डेवलप हो रहा है, दैट्स अ होल वाइड वर्ल्ड, यू नो, यूनिवर्स जिसको कहते हैं. अपनी अपनी सोच है. लोग बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में उनके माता पिता, उनके एंसेस्टर्स कंडीशन हो गए, कंडीशन करते करते अब दुनिया बदल गई है, इतनी मॉडर्न हो गई है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं बदल रहे. तो ये चीज़, इसलिए आपसे सवाल करना जरूरी था. ग्रोथ नहीं होती. बट आपके ना उर्दू में जो लैंग्वेज है ना, मुझे आपकी हिंदी बड़ी शानदार लग रही है. धन्यवाद, शुक्रिया. तो ये सवाल भी आपसे बहुत ज़रूरी है पूछना मेरे हिसाब से, बिकॉज सो शायद कम फ्रॉम डिफरेंट फादर, ईशान कम फ्रॉम डिफरेंट फादर, बट द teaching is always there. That's why I think the bond of love is there, right? Yes. So what is your teachings and what is your mother idea कि ऐसे आप अगर चलोगे तो लाइफ में एक ब्यूटीफुल बॉन्ड को आप क्रिएट कर पाओगे? बिकॉज आई हैव सीन फैमिलीज विच इज वो देखते भी नहीं एक दूसरे की तरफ को. आई हैव सीन हियर लव. सो वो जो आपकी जो टीचिंग है ना, मुझे वो जानना है, मतलब क्योंकि यू आर ऑलवेज देयर. Yeah, you know, first of all, I feel we all come through love. उसको आप लव कहिए, प्यार कहिए, मोहब्बत कहिए, इबादत कहिए, जो भी कहिए. You know, if you have a heart and a whole being full of love, तो आप हर चीज़ को प्यार से देखेंगे.
एक बच्चा कहता है मुझे मैथमेटिक्स नहीं करना है, मैं समर फंक करना चाहता हूँ, शामक का समर फंक, दैट्स शायद नहीं, मुझे कंप्यूटर्स नहीं करना है. So when he did so well in his board exams, I was the first one who stepped forward and said he has the right to choose and celebrate his success. Beautiful. And if this is what gives him joy and happiness, he is in his own playground. We will allow him to play because he's worked so hard. Academics में उसने किया है बैठ के. Now let him play. है ना? So I said go ahead. And that is how Shahid was exposed to the world of art through Shamak's form of dance. And फिर वो obviously it was connected to cinema. They started going to the sets and dancing there and everything. So आहिस्ता हर चीज खुलती चली गई. Now when a child is artistic and highly talented, a lot of potential, good mind, he forms his own, understanding of things. And he can pick his own path up. Then you're supposed to support him and guide him. You're not supposed to obstruct a child's growth. So I have brought up my children as a friend, as an elderly friend, not as a silly friend, but as a friend who's always there to converse with them. They want to talk about something that is either confusing them or bothering them, or they just have some questions to ask. They love to come and talk to me. And that is the time when I sit and chat with them in the most friendly manner. Not thinking, ये मेरा बच्चा है और मैं माँ हूँ तो मुझे अब इस उम्र में ऐसा. This is not there in me. This. It's just not there. I like to flow. That's why I'm a dancer. Light-hearted. Pani, movement, flow. It's just liquid. You can just change your body into any form. For that, you have to be very light. And you should be able to be very pliable. तो जब हमारे thoughts बहुत strong और harsh हो जाते हैं, तो हमारी body भी अकड़ जाती है. तो हमारे चेहरे में भी एक अजीब किस्म की very repulsive, So I just feel artist को मोहब्बत से देखा जाना चाहिए. हमेशा वो आपको एंटरटेन करता है, उसका फ्रैक्चर भी हो जाए तो वो गाना ख़त्म करता है, उसको एक्शन ख़त्म करता है, तकलीफ़ है, बुखार, किसी भी हाल में वो आपके लिए करता है, तो उसको आप ज़रा नरमी से देखिए. और हर रिश्ते में नरमी होनी चाहिए. आई फील लव एंड अंडरस्टैंडिंग आर वेरी बिग थिंग्स. सो मैं कंपैशनेट हूँ, मेरे जानवरों की तरफ भी, मेरे पेट्स की, किसी भी तरह, old people, I'm compassionate. So compassion, gratitude, and love, and light. This is what I feel. Everything, knowledge comes to people whose minds are open because their hearts are happy. क्या बात? Heart expansion है तो ये भी पूरा, there are no walls. It's just going anywhere and everywhere, flowing in its imagination, collecting all the knowledge and coming back. When you restrict children, barriers पड़ते हैं, and they become, and they don't know why they're unhappy. They feel lost. They don't feel special. They don't feel as if they can do anything in this world and win it, because confidence खत्म हो जाता है. They don't know because आप उसको individual बनने नहीं दे रहे हो ना. You're not allowing him to be different from you, and you don't know who's born. Do we know? Maybe a genius is born within us, or a great scientist is born, or a brilliant artist is born. हम उसको नियमित कर. So no. So I don't like no. I didn't like it. I didn't like no when I was a child, and I remember that well. I haven't forgotten my childhood. If my parents hadn't listened to me and said yes, I would not have been here today sitting and talking with you. I would have been doing some job somewhere. सेम मुझे लगता है ये सवाल भी आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे, मुझे लगता है. So you have been in multiple relationships, right? So multiple sounds terrible. मतलब 2-3 all kinds of relationships in the world. So what do you think? अगर relationship एक fail होता है तो लोग उसे failure मानते हैं, but how you see it? See, I think today when I look at everything in retrospective, मुझे ये महसूस होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मैं हो जाते हैं और तुम हो जाते हैं और हम होना बंद हो जाते हैं, तब क्रैक्स शुरू होते हैं रिलेशनशिप में. और दोस्ती जब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दोस्त बहुत प्यारे होते हैं, दोस्त आपको इनकरेज करते हैं, आपके अचीवमेंट्स में प्राइड महसूस करते हैं, और फिर उसके बाद आपको हंसाते भी हैं, आपके साथ मस्ती भी करते हैं, और ज़्यादा इंटरफियर नहीं कर सकते दोस्त, क्योंकि एक लाइन होती है,
आप you know you can turn around and say, excuse me, this is my private space, don't you know, but you can't say that to your relatives, because relatives think they can jump in anywhere. But the truth of the matter is that as we start growing up, we need that space and privacy to develop ourselves in a way, you know. और बच्चों का क्या है कि if children are comfortable with their parents, they'll come back and ask anything and everything. वो दोस्त बन जाते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी हर चीज़ ऐसी वो पहले माँ बाप से या जिससे भी ज़्यादा करीब हूँ या दोनों से हूँ, तो they like to take their advice from there because they're safest with their parents. तो मुझे लगता है ये रिश्ता माँ बाप का और बच्चों का जो है, इसके अंदर जो एक फेथ एंड ट्रस्ट है और एक नेवर एंडिंग रिलेशनशिप है, उसका 1% भी अगर आप मर्द और औरत के बीच में ले आए कि यार मतलब वी आर देयर फॉर ईच अदर फॉर एवर, तो वो फॉर एवर रहता है. जब डिस्टेंस होनी शुरू हो तो यू गो फॉर अ हॉलीडे टुगेदर, स्पेंड अलोन टाइम, discuss everything. You know, my problem should be your problem too. My achievement should be your achievement. My happiness, my joy, my glow should be yours. So then we stay hum. और जब वो अलैदगी शुरू होती है ना, तो उसमें फिर ईगो आता है. और एक बार ईगो आ जाए तो ईगो इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, यू नो. सो देयर इज एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो एक शिप पे थे और वो लोग एक्सकर्जन पे जा रहे थे. अच्छा. तो रास्ते में तूफान आ गया, तो सेफ्टी बोट्स निकाली हैं और जल्दी जल्दी सारे इमोशन से कहा कि भाई जंप इन. तो लव जंप्ड इन एंड हेल्प्ड एवरीबॉडी एंड देन ही टर्न अराउंड एंड लव सॉ दैट ईगो नहीं आया है. सो ही सेड वेट I'll go and get ego. So he ran inside and ego was no, I will not come, nothing can destroy me, I am ego. और लव उसको परसुएड करता रहा और इस तरह से लव भी डूब गया उसका. ओह ब्यूटीफुल. बाकी इमोशंस बच गए बट ये इमोशन चला गया. Beautiful. So this is it, you know. It's just as simple as that. And I feel when there is compassion in every relationship, when there's kindness and there is generosity in love, then I think कोई भी किसी भी हाल में, क्योंकि देखिए situations तो बदलते हैं. You know, they say when a storm comes or a war breaks out, go underneath. Just go under na in the relationship. थोड़ा अंदर चले जाओ. Don't get into a... Let the storm break, let things happen, the distraction happen, then come out and put it back together. So I feel वो जो thread एक होता है, वो शायद हम लोगों में है नहीं, because I think impatience and too much of self-absorption is happening. और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, सोशल मीडिया का है, सब कुछ है, जहाँ हर इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं कर रहा, अपने आप को एक नमूना बना रहा है दुनिया के लिए, जो विंडो में बैठा है. आज मैंने ये खाया देखिए, आज मैं ये पहना हूँ देखिए, आज मैं यूँ नाच रहा हूँ देखिए, मुझे देखिए मुझे देखिए मुझे देखिए. मीन्स व्हाट? कि आप तमाशा हैं, आप तमाशाई इंसान हैं. आपको आपके अंदर कोई गहराई नहीं है, आप खामोश बैठ नहीं सकते. आपको ऑल द टाइम यू नीड टू टॉक एंड यू नीड टू बी देयर इन द सेंटर, इन द लाइमलाइट, because you can't sit quietly and listen to anybody else. So I think it's quite scary what's happening. हर इंसान मैं कर रहा है, तो तुम की जगह कहाँ होगी? There's no space for another person. मैं शायद कपिल शर्मा जी का शो देख रहा था, तो उसमें शाहिद ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं आपसे ही सेड कि जिंदगी में ना बोलना सीख लेना चाहिए. जो ना नहीं बोल पाता ना, उसका ना बड़ा इस्तेमाल करती है दुनिया. हाँ, वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो एक अलग इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है. मैं जो कह रही हूँ वो यस के बारे में बोल रही हूँ ज़रा सा, कि भाई दूसरे को यस भी कर दिया करो. हर चीज़ अपने लिए यस है और दूसरे के लिए नो है, तो फिर वो इंसान आपके साथ खुश कैसे रह सकता है? मेरे ख्याल में हर रिश्ते में ये आता है, हर रिश्ते में. और दोस्ती बहुत पैरामाउंट है. दैट्स इट. अच्छा, आपका see you have seen every color of life, right? अपना एरा भी और आज जो मॉडर्न जनरेशन चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक एक जो रिलेशनशिप का जो टेक है ना, वो कैसे बदल गया है? मतलब वो सॉफ्टनेस कैसे मिस आउट हो गई है? आजकल बहुत मॉडर्न, बहुत फास्ट फैशन की तरह वो हो गया, लव भी बड़ा फास्ट फैशन हो गया, तो कैसे वो टेंडरनेस बदल गई है ना? आप देखिए, दुनिया तो पीछे की तरफ नहीं जा सकती, लेकिन हमने जो अपने पेरेंट्स के ज़माना देखा है, जो उनके रोमांस के बारे में, जो उनकी लव अफेयर्स और
किस किस्म के मतलब ब्यूटी होती थी उसमें, और इतना इनोसेंस था, यू नो. Innocence is a very big thing. Big thing. What happens is now you're dating so casually. Today this is that is or something. उसमें क्या है ना, गहराई से किसी चीज में उतरने का तो जगह ही नहीं है ना. You don't want to know another person because you go by the glamour and the out and this clothes and this body. You go there, you do the thing and you move on to the next thing. आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम लोग हैं, हम एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से, मैथमेटिशियन है तो वो मैथ्स का ही वो निकालेगा फॉर्मूलाज और ब्रिलियंट कुछ उसमें से पैदा भी करेगा. इसी तरह से एक रिश्ता है दो लोगों के बीच में, वो एक दूसरे को जानने में वक्त लगता है, और वही क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वही इंटरेस्ट होना चाहिए कि यार ये कौन है. लेकिन अगर हम अपने में ही पूरी तरह से मैं कर रहे हैं और हम वो अपने, and this is not self-love. There is something called self-love. It's a beautiful thing. Because only if you love yourself can you really love anybody else. But that is a quieter sort of a love, you know. And so I personally, not to repeat myself, I personally feel that relationships are breaking up because they don't really know each other. और वो जो initial एक होता है ना, fascination, attraction, वो तो wear out हो जाता है after some time. पता चला नजरें दूसरों को देख रही हैं, तो ढूंढ रही हैं कुछ और, तो वो इंटीमेसी खत्म हो जाती है. वो इंटीमेसी खत्म हो जाती है तो डिस्टेंसिंग आ जाती है. और फिर आप एक इंसान को एक प्रॉपर्टी की तरह या प्रोडक्ट की तरह कैसे छोड़ सकते हैं, या ला सकते हैं, या झिझोड़ सकते हैं और फिर उसको मरते हुए छोड़ सकते हैं. आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर इज आवर ह्यूमैनिटी नाउ. ह्यूमनिज्म जिसको कहते हैं, यू नो, वेयर इज दैट काइंडनेस. Even if you're approaching a girl and you realize she's fragile, she's looking for something more long term, and you know, तब भी आप इस्तेमाल करके उसको जो जोड़ के निकल जाते हैं. या लड़कियां जो हैं चालाक हैं, किसी के पास बहुत पैसा, पावर, स्टेटस है तो वो उनके साथ चिपक जाती हैं और फिर अपना इस्तेमाल करती हैं. इस्तेमालों की तरफ फिर वो रुमाल की तरफ फेंक भी देती हैं. So you know, everything has become about success, shortcuts, and power. And of course, grandeur and money and wealth, and you know, it's all become that. And uski wajah se people look for shortcuts, and a person has become a ladder for them. इस पे चढ़ेंगे इतना, फिर उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो वहां से फिर वो वाली सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर ऐसे करते कराते we will also become a huge power in ourselves. It's all, फिल्में भी ऐसी ही बनती हैं. It's all about violence, and you know, it's all about, they're bloodthirsty people. Look at the films that are working well. They are films that are totally dehumanized. So I think we are moving away. लोग जो हैं इसको बेवकूफ़ी समझते हैं, जो मैं बातें कर रही हूँ. लोग हंसते हैं ऐसी बातों पे और बेवकूफ़ समझते हैं आपको. An idealist is nobody in today's world. एक शायद ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है आपसे पूछ लेना. ईशान इज़ देयर, शाहिद इज़ देयर, देयर आर लॉट मेनी मेंस जो भी लाइफ में है आपके. आपका पोर्ट्रे क्या है, मतलब आप क्या देखना चाहते हैं बच्चे आपके जो है इस तरीके से, बिकॉज आपने जैसे बताया ना कि हर साइड ऑफ मैन इज देयर, तो व्हाट साइड यू वांट टू ब्रिंग टू योर चाइल्ड कि ये ऐसा होता है, एक मर्द को ऐसा बनाना होता है. ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, थॉरो जेंटलमैन, बी वेरी प्रोटेक्टिव towards all those that are obviously maybe physically or otherwise in terms of you know, their positions in life weaker. And I think men who cannot be protective are not men at all. To be gentlemanly means to speak well to a lady. तो आज lady का concept तो है ही नहीं ना. There is no such concept. ये खातून है, she's a lady. ये तो she's a girl, yeah. है ना. तो वो चीज़ें, एहतराम, तहजीब, तमीज़, कायदा, ये चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं. कायदा एक बहुत खूबसूरत चीज़ है. बहुत खूबसूरत चीज़ है. वो दुनिया को बैलेंस में रखता है. अगर कायदा यूनिवर्स में रहे तो यू विल नॉट बी फेसिंग, यू नो, ऑल काइंड्स ऑफ डिजास्टर्स. एंड सो द सेम थिंग इज़ अबाउट ह्यूमन बीइंग. हमारे अंदर भी एक दुनिया है, हमारे अंदर भी समंदर है, हमारे अंदर भी सूरज है, चांद सितारे हैं. इफ़ यू थिंक सो, इफ देयर इज अ गैलेक्सी इनसाइड, एंड उसको आप कितना खूबसूरत, ट्रांजिएंट और प्योर बना के रखना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है.
नहीं तो stain and dirt and filth is the easiest. It's the most tempting actually. आपको पता ही नहीं चलता that you have gone too deep under. That's why drugs. And I personally feel when you have too many partners, you have too many people, you know, everything starts boring you after a while. And then you seek more and more of quick excitement, quick ecstasy. So ये सारी चीज़ों की वजह से I suppose a lot of people are drinking a lot and they're into drugs because there's an emptiness, ना? गहरे रिश्तों में emptiness नहीं feel होती. अच्छा, मैं बोलूँ यंग नीलिमा जी और आज की नीलिमा जी, उनमें क्या ऐसा होता है कि आप उसे एडवाइस करते कि यार ये जो अभी तू बदल रही है ना, वो ऐसे बदला वाला? मैं ये कहती हूँ कि काश जो विजडम आज मेरे अंदर है वो अगर मेरे अंदर 16, 17, 18 साल की उम्र में कुछ उसके हद होती तो शायद मेरी ज़िंदगी में इतने तूफान नहीं आते और मैं अच्छे चॉइसेस. मैं बहुत छोटी उम्र में क्लासिकल डांस टॉप पे आ गई थी और आई वॉज मच इन डिमांड एज अ क्लासिकल एक्सपोनेंट, कथक एक्सपोनेंट. तो मैं प्रोफेशनल हो गई तो मुझे लगा मैं बड़ी भी हो गई हूँ. होता है बिल्कुल. और फिर मैंने जो चॉइसेस उस इमेच्योरिटी में, जो बेवकूफ़ियाँ, यू नो, हमारे ज़माने में एक चीज़ और भी होती थी कि भाई किसी से मोहब्बत हो जाए तो शादी तो करनी है. राइट. आपने डेटिंग कर ली तो नेक्स्ट स्टेप इज नाउ यू हैव टू गेट एंगेज्ड एंड देन मैरिड. राइट. एंड सो वो चीज़ें भी एक एक्सट्रीम में थी. हम लोग बहुत आइडियलिस्टिक थे, बहुत रोमांटिक भी थे. आर्टिस्ट थे तो ज़्यादा ही रोमांटिक थे. तो यू नो वी यूज्ड टू कैरी अ हार्ट अंडर आवर स्लीव्स काइंड ऑफ थिंग. तो फिर ये उसमें दिल टूटता था. और तो मुझे ये लगता है कि शायद अगर मुझ में वो एक ठहराव और गहराई उस तरह की विजडम्स जो लाता है विथ एक्सपीरियंस यू गेट इट, तो शायद मैं वो गलतियाँ ना करती. लेकिन फिर मैं जब आज अपने बच्चों को देखती हूँ, व्हेन आई सी शाहिद एंड आई सी ईशान, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स. So maybe my heartbreaks gave me the biggest happiness. Right. That who I married and had a child from, that marriage did not survive. That person went away. But I had the most beautiful experience of having these two children. I cannot imagine wanting to have any other children. Like there was a time when I used to want a daughter. And for a long time I wanted a daughter. But after my children grew up and they have their feminine side is so well developed, they are not alpha males. My sons, ऐसे नहीं है. They have this, and that's why they're very beautiful, I think, artists. They're very fine actors. They are flexible, so they're very good dancers. आप flexible as a human being हैं, तो ही आपके muscles flexible होंगे. Your mind and your heart guide your body. So your body is a separate thing that is following your heart and soul. So if your mind is rigid and you know you don't have much space to be fluid inside, तो फिर वो नाच में वो वेव्स और वो सब आते नहीं हैं. तो वही मैं सोचती हूँ कि टुडे व्हेन आई सी माय चिल्ड्रन एज थॉरो जेंटलमैन, आई सी द वे दे ट्रीट लेडीज एंड their compassion towards the underprivileged or the lessers and all that they're doing and as human beings and their complete involvement in their art forms and artistry. I turn around and say, चलो ठीक है, मेरा दिल टूटा लेकिन आज वो इतना भर चुका है, भर चुका है खुशियों से कि वो याद भी नहीं है ठीक से. अब इट्स ऑल गॉन. हम बोलते तो है कि विजडम बोलते हैं, बट आपके लिए तो विजडम होता क्या है वैसे? बैलेंस. आई थिंक लाइफ इज अबाउट बैलेंस. हम जब छोटे होते तो इम्पल्सिव होते हैं, हम बह जाते हैं चीज़ों में. But balance is something that you have time. You know, when we fall in love, we just want to be with our mate. And we just want to be with our beloved. And so we spend all our time and give every second to that. That's not right. I don't think you should just forget about the rest of the world and all your other friends and your relatives and your beautiful professional relationships and anybody and everybody in life.
प्यार आपको बहुत खूबसूरत बना देता है, आपका दिल चाहता है दुनिया से प्यार करने का, तो मुस्कुरा के एक गरीब आदमी की तरफ भी चले जाओ और उसके लिए कुछ कर दो, बिल्कुल ही पागल से हो जाते हैं प्यार में ना, हम सब हो जाते हैं। और फिर बाद में इतना ज्यादा घुसने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। सो मच प्रॉक्सिमिटी स्टार्ट्स मेकिंग यू गेट इरिटेटेड विद दैट पर्सन, बिकॉज वी आर बोर्न फॉर द वर्ल्ड, वी आर नॉट बोर्न फॉर जस्ट वन मोर ह्यूमन बीइंग इन आवर लाइव्स। तो यही है, wisdom I think is balance, wisdom is experience, wisdom is, and like I said, as you grow older you become kinder, more understanding, you have a lot of generosity in your heart, you have a lot of gratitude for every day when you wake up, and you do wake up to a world again and you're not dead in your sleep. There's so much gratitude, and then you stop thinking about yourself so much, you start, बिकॉज आपकी आउटर ब्यूटी, आपकी जो वो सारी चीज़ें द वर्ल्ड डिमांडिंग योर यूथ में जो होता है ना, दैट गोज अवे. Now there are two types of people, one who get depressed because they don't have the world anymore, and the others who want to share and who want to give love to people who are not necessarily successful, or you know, your colleagues or whatever. Just anybody जो आपकी ज़िंदगी में आ जाता है. Old people, how they sit in the garden and just say nice things to you, and beta, what are you doing? You know, there is so much compassion for others after that. तो फिर वो इतना ज़्यादा एक दीवार नहीं रहती कि ये अपना है, वो पराया है, ये स्ट्रेंजर है. नहीं, everyone, anything, life, flowers, plants, everything gives you happiness. I don't know, I can be wrong here, but I met a lot of people in Bombay, right? तो मेरे को काफ़ी लोग ऐसे मिले जो ना बड़े समय के साथ ना बड़े टॉक्सिक हो गए, बहुत सैड हो गए. पर ऐसा क्यों है? तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा, मतलब बहुत सैड से. मैं आपको एक बात बताऊँ, आप सिर्फ अपने लिए जिएंगे तो एट द एंड यू विल बी सैड. Because nobody is now reaching out to you anymore for your glamour, for your outer beauty, for the great achievements, for this, for that. People जो चमचे हैं या जो भी हैं, आप उनको बोलो ग्रुपीज, आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, वो इसलिए कि उनको कुछ हासिल हो रहा है आपके थ्रू. लेकिन जब वो वक्त चला जाता है और वक्त थम जाता है और इंसान जो है वो बुढ़ापे की तरफ पाँव रखता है, तो उसने पूरी जिंदगी कितना वक्त दिया उन लोगों को, उस पर डिपेंड करता है कि आज वो कितना अमीर या गरीब हो चुका है. तो अगर आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं और सारे रिश्तों को आप ठुकराते हुए निकल जाते हैं, तो डेफिनेटली एक ऐसा अरसा होता है जिसमें द होल वर्ल्ड में दे आर ऑल स्ट्रेंजर्स, वो चले जाते हैं. द पीपल दैट एक्चुअली स्टे विथ यू इज योर फैमिली एंड योर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. तो उसके वही मैंने कुछ पहले भी आपसे कहा था कि डोंट फॉरगेट दैट, डोंट स्टॉप गिविंग टाइम टू दोज पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू योर लाइफ, इवन इफ दे हैव ब्रॉट अ स्माइल ऑन योर फेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स ऑल. आई जस्ट फील दैट लोग यहाँ पे शायद इतना ज़्यादा अपने अंदर मशगूल हैं, इतने ज़्यादा गिरफ्त हैं अपने करिश्मा से और अपने लेजेंडरी उनके जो इमेजेस हैं उसमें, वो खुद भी यकीन करने लगते हैं कि वो खुदा हैं. और जब वो इल्यूजन टूटता है तो वो शराब या ड्रग्स या जो भी है उसकी तरफ वो नेचुरली, बिकॉज इट्स टू मच पेन टू बेयर, व्हेन यू रियलाइज कि इट वाज जस्ट अ टाइम दैट इज गॉन बाय नाउ, एंड अब क्या सवाल ये उठता है, अब क्या. मैं ना अपने हर गेस्ट से एक लाइन बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ एक्सप्लेन ज़रूर करें. और आपसे तो लोग कहते हैं वक्त से बड़ा कोई जवाब नहीं होता. वक्त से बड़ा कोई सवाल भी नहीं होता. और मैं आपको बताऊं एक छोटी सी चीज़, बहुत मजा आ रहा बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन यही है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है. मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने शाहिद से एक बार बात की तो मैंने कहा, नो शाहिद, जब हम एक्सेलेंट होते हैं, परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं. परफेक्शनिस्ट आर वेरी शॉर्ट इन पेशेंस and they want everything to be done in a absolute excellent manner, you know, हर चीज़ अपनी जगह पे. तो आप एक्चुअली दूसरों को कमतरी का एहसास देते हैं, वो लगता है वी आर नॉट गुड इनफ. और उसमें काइंडनेस, आप अवेयरनेस रखिए कि भाई आपको हर चीज़ परफेक्टली चाहिए, खुद कर लीजिए थोड़ा बहुत, और दूसरों ने जो छोटी सी मिस्टेक कर दी उसको आप करेक्ट कर दीजिए. उनको इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से कुछ समझा दिया, हल्का सा उनकी भी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है. बट नॉट बी हावी ना रहें आप किसी के ऊपर.
तो मैंने उससे कहा कि when we pursue excellence, we are only doing it for ourselves. We are not doing a favor to you and you. You see? और ये एक एहसास बहुत बड़ा है. बहुत बड़ा है. जब आप ये समझ जाते हैं कि when you do something for somebody else, they remember you. They don't remember you because you are brilliant at your job. अगर एक स्पॉट बॉय है, प्रोडक्शन का इंसान है, या कोई ऑफिस बेरर है, कोई भी है, वापस घर जाता है तो अपनी बीवी से ये कहता है कि आपको पता है फलाना स्टार जो है वो बहुत अच्छा इंसान है. आज उसने मुझसे पूछा कि कोई तकलीफ तो नहीं है, और उनको जब पता चला तो उन्होंने ये किया, मुझसे ये बात की. वो ये नहीं कहता कि क्या शॉट दिया यार, मैं तो बस तुमसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो बहुत ही वो हो गया, उनका मुरीद बन गया कि उन्होंने क्या शॉट दिया, क्या आर्टिस्ट. दे डोंट टेक दैट बैक विद देम. दे टेक होम what you did with them or for them, or how you made them feel. कुछ करने की भी जरूरत नहीं. If you make somebody feel like a dwarf, they कहते हैं ना, a small man's ego beware, वो फिर भूलता नहीं है. और जहाँ छोटे छोटे ऑफिसेज में जाके चर्चा करता है कि यार ये कलाकार के साथ काम मत करो, वो बहुत तकलीफ देगा, वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो डिफिकल्ट है, कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करता. सो ठीक है, वो भी एक वजह से, कोई वजह की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए टू बी नाइस. So this is something I told him. I said that a good deed is what takes you forward, not brilliance for your own growth. वो हम अपने लिए कर. दिल खोल के जीना किसे बोलते हैं? आपसे पता नहीं, जानने का मन है आपसे. अगर देवानंद की फिल्में होती थी ना, बोला तो अच्छा गया, मस्त रहो, बी मस्त, टेंशन एंड स्ट्रेस मत लो. हर चीज़ की वजह से आपको खड़ा होना है, बोलना है, स्ट्रेस लेना है, लोगों से टकराव करना है, ज़रूरत नहीं है. खामोशी से करिए और कुछ अच्छा काम करके जाइए. सबसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है. बस इतनी सी बात है कि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. आप किसी भी जानवर को देखिए, they all run together and they look beautiful. When you see horses running together, you see zebras running together, or you see lions sitting together, whatever, जब वो together होते हैं तो वो magnificent होते हैं. जब वो अकेले होते हैं, vulnerable होते हैं. Beautiful. Thank you so much. Thank you so much. Beautiful. I love